feeling? So hopefully you have gone through your English syllabus. Are you comfortable in English? आप लोग समझते हैं English? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Okay. So it's okay, students, no problem. If you face any kind of difficulty, if you are not able to understand, please tell me. I am here to teach you only. So if you feel that I am going just more in English, I'll come in Hindi. Okay? So dear students, I would like to ask you one question. First of all, tell me that have you gone through the syllabus? Yes. Yes, ma'am. But in your syllabus there are 2 language skills. Have you read? Yes. Number one is reading comprehension. Number one is, I'll be just writing bacha like this only, not full name, because you have already gone through the syllabus. Number one is reading comprehension. Number 2 is, yes, translation. Translation to Punjabi to English. Clear? So these are 2 language skills. Then comes, I'll be just talking about vocabulary now. Rest the part I'll be discussing later. Hanji, next comes vocabulary. Here in vocabulary you have synonyms, antonyms, one word substitution, and idioms and phrases. Clear? Yes, ma'am. These all are the topics of vocabulary, and then comes the very, very important topic that is relevant to, yes, completely grammar. It's completely grammar based syllabus. Clear bacha? Understood everyone? Yes, ma'am. The fourth we can say that completely grammar based syllabus. Bacha, listen, here comes error. You need to support errors. There is a rearranging of the sentences. Here comes filling the blanks and many more such topics. Clear बच्चा? तो बच्चा जो मैं आज टॉपिक आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ, और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट जिस टॉपिक से आज हम शुरू करने वाले हैं इज नाउन. वेरी सिंपल टॉपिक इज देयर, एंड आई होप यू मैम हैज ऑलरेडी टोल्ड यू वन वोकैबुलरी टॉपिक, है ना? कुछ ऐसा ही था ना? आपके इंग्लिश टीचर ने आपको पढ़ाया था ना एक वोकैब का टॉपिक. So we'll be here starting with grammar. Okay, topic noun we are going to start with today. Noun. You all are familiar with noun. आप सब लोगों को पता है कि noun क्या होते हैं? Yes. Can any of you just once? Yes, बच्चा. Noun is the name of place, animal, things. Very good, very good, very. Anybody else? हाँ जी. Yes, absolutely, बच्चा. You are absolutely correct because this definitions we have been learning since our junior classes. ये same definition है जो हम अपनी junior classes से सीखते चले आ रहे हैं. Nouns are the names of person, place or thing. बच्चा, not only this. Nouns are not confined to these only. There is much more in noun. Yes, feelings, ideas, quality, and unit of measurements. Everything comes in noun. In simple words, I can say you everything which has name is noun. हर कोई चीज जिसका नाम है is noun. You know, अगर हम डेरिवेशंस की बात करें ना, तो जो वर्ड नाउन है डिराइव हुआ है नोमन वर्ड से. बच्चा, नोमन वर्ड से ये डिराइव हुआ है. इसका मीनिंग ही होता है टू नेम. अब आप देखो, इसका मीनिंग ही है टू नेम, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये हर एक चीज को नाम देता है. तो जो हर चीज जिसका नाम है इज नाउन. नोमन मीन्स टू नेम. हाँ जी बच्चा. सो जो नॉमन है लैटिन भाषा का शब्द है. क्लियर बच्चा? लिसन, are you able to understand? Are you able to see this? Pay attention. Okay? हाँ जी, नॉमन. So let's start the topic. So अच्छा, नाउन की अगर हम काइंड्स की बात करें ना, 5 तरह के नाउन्स होते हैं. कॉमन नाउन या कॉमन नाउन. The words or the nouns which are not specific or not particular are called, yes, common noun. Clear? Common noun, the words or the nouns which are not specific, not, yes, particular are called common noun. ठीक है? आप गर्ल हो, ठीक है? आप गर्ल हो, ये वर्ड जो गर्ल है ना, ये कॉमन नाउन है. आपका नाम क्या है? What's your name? मनजिंदर कौर. मनजिंदर कौर. ठीक है बच्चा. अब आप देखिए, ये जो मनजिंदर कौर है ना, ये कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नेम है, ये एक स्पेसिफिक नेम है. ठीक
ठीक है ना। जो कॉमन चीज़ें हैं उनका अगर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाम है देन इट इज़ प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है बच्चा, अंडरस्टूड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन बच्चा आप समझ गए हो? यस देयर, यस, आर यू अंडरस्टूड? या हाँ, यू अंडरस्टूड। सो कॉमन नाउन। अच्छा ये रूम ये क्या है, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? ठीक है, आप स्कूल आप कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, वर्ड कॉलेज क्या है, कॉमन के प्रॉपर? कॉलेज पूछा है मैंने, आपका स्कूल कॉलेज का नाम नहीं पूछा है। वेरी गुड, कॉलेज कॉमन, बट गवर्नमेंट कॉलेज प्रॉपर। वेरी गुड। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? मुक्तसर। तो मुक्तसर वर्ड क्या है, कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर। सिटी है ना, आप एक कौन सी सिटी में रह रहे हो? वर्ड सिटी क्या है? सिटी, सिटी कॉमन बच्चा, सिटी कॉमन। एंड वेरी गुड, कंट्री, कंट्री बताइए कौन सी कंट्री में आप रह रहे हो? ये क्या है? बिल्कुल क्लियर। सो मीन्स कॉमन क्लियर, प्रॉपर क्लियर। ओके हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट कौन सी है हमारी? एब्स्ट्रैक्ट बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द 5 सेंसेस। जो हमारी 5 सेंसेस होती है ना, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट हियर इट, वी कैन नॉट स्मेल इट, वी कैन नॉट टेस्ट इट, वी कैन नॉट टच इट। सो हमारी 5 ही सेंसेस यहाँ पे काम नहीं करेगी एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है जी, तो क्या कैसे कैसे पहचानेंगे? फील, यस, जस्ट फील इट। तो ऐसे वर्ड जो हम फील कर सकते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, से सम वर्ड्स, लव, हेट, यस, रिवेंज, यस, फियर, काइंडनेस, एंगर, यस, हॉस्पिटैलिटी, हैप्पी, सैड, यस, एंड मेनी मोर। ठीक है बच्चे, समझ आ गई आपको? तीनों नाउन्स अच्छे से समझ आ गए आपको? कॉमन मीन्स, जी हाँ, कॉमन वर्ड्स, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड प्रॉपर मीन्स नेम, नेम्स, ठीक है, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बिल्डिंग का नाम, अब ताजमहल क्या है बताइए? ताजमहल, बिल्कुल, जी हाँ। हिमालयाज, बिल्कुल, अंडरस्टूड एवरीवन? तो एब्स्ट्रैक्ट भी क्लियर है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी आप फील ही कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको एग्जैक्टली देखा तो जाता है नहीं, तो वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है बच्चा? तो बच्चा नेक्स्ट है मटेरियल। मटेरियल, material are the nouns. Material means are the some substances or material from which things are made. जिससे कुछ बनता है ना, that is material noun. Okay? आप जैसे कि मिल्क, मिल्क से क्या बनता है? कर्ड बनता है, चीज़ बनती है, घी भी बन जाता है, ठीक है जी। तो मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। आप किस पे बैठे हो? टेबल से बैठे हो, किससे बने हुए हैं? वुड से बने हुए हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है जी। प्लास्टिक, चेयर, चेयर क्या है? चेयर, बिल्कुल। अब ध्यान, जो देखिए मटेरियल नाउन होता है ना, उनसे जो चीज़ें बनती हैं दैट इज कॉमन नाउन। क्लियर? अंडरस्टूड? गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी बनती है ना इनसे, जो ज्वेलरी है ना, ऑर्नामेंट्स, नोज पिन्स हो गए, ईयरिंग्स हो गए, बैंगल्स हो गए, ये क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है जी। एल्यूमिनियम, मटेरियल नाउन, इससे बनने वाली चीज़ें कॉमन नाउन। अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? तो ये चारों समझ आ गए ना आपको? नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट? कोई बता सकता है आप में से? जो 5 काइंड्स है ना हमारे नाउन्स के। हाँ जी, यस बच्चा, इट्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, यस, इट्स अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ समथिंग, बट टेकन एज अ होल, टेकन एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है जी, आप इसे एज अ होल मानेंगे, एज अ सिंगल एंटिटी मानेंगे। जैसे क्लास, वेरी गुड, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो वर्ड स्टूडेंट्स है ये क्या है? स्टूडेंट क्या है? कौन सी नाउन है? कॉमन, कॉमन, कॉमन। अब क्लास क्या है? कलेक्टिव, जी हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप बताइए टीम,
कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ज्यूरी, कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ जजेस होता है ना, क्लियर। अच्छा जी, पीपल, पीपल, बच्चा जी कैसे कॉमन, कैसे आप बताइए कॉमन कैसे बच्चा, एक इंसान को आप पीपल बोलते हो नहीं ना, कलेक्शन तो होता ही है ना, ठीक है जी। हाँ जी, क्राउड, वेरी गुड। हाँ जी, आर्मी, आर्मी, मंच, ठीक है जी। जो वर्ड्स कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कैटल, कैटल बताइए, कलेक्टिव, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये कैटल है कलेक्टिव नाउन, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि ये दीज आर टेकन एज अ होल, मींस एज अ सिंगल एंटिटी, तो आप इनके साथ वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगल है तो डेफिनेटली सिंगुलर ही यूज करनी है ना, बट यू नो कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहां हमें प्लूरल यूज करना पड़ता है। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है जहां आपने प्लूरल वर्ब लगानी है? यस, पीपल पे क्या लगाओगे? पीपल नहीं, आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सपोज आपको इस दो आर लगाना है, इज लगाओगे या आर लगाओगे? आर लगाओगे। क्यों लगाओगे यार? ये तो कलेक्टिव नाउन है, उससे तो एज अ मतलब सिंगल एंटिटी लेते हैं, उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, आर क्यों लगाओगे? कुछ रीजन है? बिल्कुल है। क्या रीजन है? रीजन है कि जो पीपल होते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी के पीपल होते हैं, कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई जज होता है, होते हैं ना। जहां डिफरेंस दिखाई दे, जहां डिफरेंट पीपल दिखाई दे, डिफरेंट ओपिनियंस दिखाई दे, डिफरेंट व्यूज दिखाई दे, वहां आपकी जो वर्ब है ना प्लूरल हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाना है, इज नहीं लगाना है। फाइन एवरीवन, एनी डाउट अप टू हियर? अच्छा जी, आर्मी, आर्मी के साथ इज लगाओगे क्या आर? क्यों भाई आर क्यों लगाओगे? एक ही तरह के लोग होते हैं, सारे ही सोल्जर्स होते हैं, कोई डॉक्टर थोड़ी ना बैठा होता है। क्या बैठा होता है? बिल्कुल। देखिए, जब एक ही तरह के लोग, एक ही ऑब्जेक्टिव तो इज, लेकिन सपोज आर्मी को डिवाइड कर दिया, कुछ को इस मतलब कि किसी और रूट पे पोस्ट कर दिया और कुछ लोग, कुछ आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको कहीं और पोस्ट कर दिया, फिर क्या लगाओगे? जब डिवाइड हो गया, वर्ड डिवाइड याद रखना बच्चों, डिवाइड मीन्स प्लूरल वर्ब जाएगी इनके साथ, ठीक है जी। अब पीपल का भी तो हमने ऐसे समझा था ना, लोग डिवाइड हो गए थे, अलग अलग कैटेगरीज उनके हो गए थे। फाइन, अंडरस्टूड? ऐसे ही हम आर्मी को कहेंगे, ऐसे ही हम पुलिस को भी समझेंगे। पुलिस बताइए, पुलिस इज के आर, इज अगर एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए सब काम कर रहे हैं, आर अगर वो अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं। पुलिस इज एनर्जेटिक हियर, जितने भी लोग खड़े हैं पुलिस वाले बिल्कुल एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइन, पुलिस आर पोस्टेड ऑन डिफरेंट रूट्स, वो अलग अलग रूट्स पे पोस्ट कर दिए गए हैं, मतलब कि उनकी ड्यूटीज लग गई है। फाइन, आर लगा दिया, अंडरस्टूड। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब वैसे ठीक है, ये तो मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, कॉमन प्रॉपर जो ये हमारे टाइप्स हैं। मेन हमारा जो मकसद है इन चीज़ों को सीखना, ठीक है जी। इन चीज़ों को सीखेंगे क्योंकि आपके जो पेपर है उनमें एरर्स आपको ढूंढनी होती है। एरर सपोर्टिंग जो मैं करवा रही हूँ ना, उसके लिए है ये। एरर सपोर्ट करनी पड़ेगी। पेपर में क्या आ जाएगा? पीपल के साथ इज लगा हुआ आ जाएगा। आपको क्या देखना है कि पीपल के साथ इज तो लगता ही नहीं है, ठीक है जी। अब आप देखिए, अब पीपल तो ठीक है, अब ये ठीक है पीपल्स, ऐसी मतलब सिचुएशन होती है जहां आता है। सो डू यू नो कि कहाँ आएगा ये? बच्चा जी ऑब्वियस है, पीपल के साथ तो आ ही आता है। मैंने ये पूछा है कि एस कहाँ आ जाएगा? एस बच्चा, जब हम वर्ल्ड के लोगों की बात कर रहे हैं, सारी कंट्रीज के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कंट्री पीपल, बहुत सारी कंट्रीज, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये स्टेटमेंट आपके पेपर में आया हुआ है ना, तो पीपल्स ओके है, ठीक है। कहीं गलत मत कराना कि पीपल्स तो होता ही नहीं है, बट बच्चा वर्ल्ड भी देख लो आगे, ठीक है ना। लोग, अब जो लोग हमारे बट गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हो गए हैं, जी हाँ,
अमेरिका के, कनाडा के, इंडिया के, अलग अलग हो गए ना, सारे ही लोगों के बारे में बात करी जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फाइन। बस यही चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पेपर में, यही मार्क्स आपको दिलाने वाली हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई डाउट है? श्योर? ओके जी। तो पुलिस का भी जैसे आपको पता चल गया है सब, ठीक है, कहाँ इज लगाना है, अगर डिवाइड वर्ड आ गया तो आर लगा देना, ठीक है। कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, डिवाइड आ गया है तो आपने आर लगाना, अदरवाइज यहाँ पे इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही चलेगी, ठीक है बच्चों? क्लियर? एक टीम के साथ बताइए, टीम इज प्लेइंग वेल, टीम इज प्लेइंग वेल, ठीक है, ओके। अब अगर आपने इडियम्स करा है ना तो 6s and 7s सुना है आपने? हाँ जी, एवरीवन सी दिस सेंटेंस, टीम इज और आर एट 6s and 7s। इसी तरह का सेंटेंस आपके पेपर से मैंने लिया, एक सैम्पल पेपर से लिया, ठीक है। ये टीम इज और आर एट 6s and 7। 6s and 7 होता है झगड़ा, डिसऑर्डर, जब चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही होती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो टीम में लड़ाई झगड़े हो गए हैं भाई, तो मैंने कहा ना डिवाइड हो गई। वर्ड डिवाइड जरूरी नहीं लिखा हुआ हो, समझना पड़ेगा। 6s and 7 मीन्स डिवाइड होना, लड़ाई हो जाना, लड़ाई है तो मतलब डिवाइड हो गए हैं ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? बस। और जिसको पता है वो तो आर लगा के आएगा, जिसको नहीं पता है वो इस पर टिक करके आएगा, फिर उसका नंबर 1 जाएगा। 1 नंबर जाने का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, 1 नंबर से भी जॉब मिल सकती है, 1 नंबर से भी जॉब जा सकती है, ठीक है जी। अंडरस्टूड एवरीवन? श्योर? हाँ जी। सो नेक्स्ट बच्चा कम्स काउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है जी। Countable noun can be counted, uncountable cannot be counted, ठीक है जी। There is बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है काउंटेबल को पहचानने के लिए, इनके आगे 1 2 3 4 लगा के देख लो, अगर लग गए तो काउंटेबल है, नहीं लगे तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। चलो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। Those who like say that this is uncountable or first countable, just raise your hand. Those say it is countable. Many. Oh my God. Okay, fine. Those who say it's uncountable. 1 2 3 hands. You have got 1 mark. Okay. Money is absolutely uncountable, dear. Uncountable. अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नो, मनी को धन बोलते हैं, पैसा नहीं बोलते हैं, धन। धन, आपके घर में कितना धन है आप कहते हैं ऐसे? 5 धन, 20 धन, 50 धन कहते हैं? नहीं कहते। रुपीज़ ज़रूर कह देते हो, हमारे घर में इतने रुपीज़ है, या मेरे पास इतने रुपीज़ हैं, ठीक है, मेरे पास इतना धन है, ठीक है, मेरे पास इतने रुपीज़ हैं, धन नहीं बोलते ना। तो फिर मनी भी वही है भाई। वाई फिर क्यों इसको काउंटेबल कह रहे हो? इट्स नॉट, नो इट्स नॉट काउंटेबल, इट्स एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल, ठीक है। नंबर आप लोगों का आया है और इन सब लोगों का गया है, पेपर में आएगा पक्का, देख लेना, ठीक है जी। बच्चा जी रुपीज गिने जाएंगे, धन नहीं गिना जाएगा। आप क्या, आपको वर्ड के मीनिंग के साथ उसको लेना है जी, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट आप जाएंगे वर्ड के साथ जाइए, फिर काउंटेबल है। वर्ड ही देखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही वहां पे आया था ना पीपल, सिचुएशन देखनी थी ना, सिचुएशन ही देखनी है। हाँ जी, बस यही तो देखो, ये क्या होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वही मैं बताने के लिए हूँ यहाँ पे आपको यही डिफरेंसेस तो मैंने बताने हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर? अभी क्या लगाओगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? जी हाँ, नंबर चाहिए ना, तो जरूर अनकाउंटेबल ही बताना। हाँ जी। सो सेकेंड इज स्टार्स, अनकाउंटेबल। चलो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आप जो काउंटेबल चीजें होती है ना उनके साथ 1 2 3 लगा के देख लो, जो लग गया तो काउंटेबल, नहीं लगा तो अनकाउंटेबल। अब स्टार्स के साथ आप लगा सकते हो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, क्यों भाई 5 स्टार्स लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं जी, बिल्कुल। अब देखो
स्टार्स आर काउंटेबल। बस जिनके साथ 1 2 3 4 लग गया ना एब्सोल्युटली काउंटेबल, जिनका नहीं लगा अनकाउंटेबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब लोगों के नंबर जा रहे थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। क्लियर? हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट इज राइस। बिल्कुल, आज हमारे घर में 5 राइस बने हैं, बिल्कुल नहीं कहते हम, है ना? बिल्कुल नहीं कहते ना, बिल्कुल ठीक है। बस यही अच्छी सी ट्रिक है, आगे 1 2 3 4 5 लगा के देख लेना एंड यू विल कम विद द आंसर। ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो बच्चा I'll try to give you one worksheet. Do you have any WhatsApp group? With just add me there. Okay, I'll be sending you the complete, like I have the worksheet there. You will have so many such words, and once or twice you will read, you will get to know each about everything. Okay, sure. Before going, I'll give you. Just add. Who has made the group? You have made the group. Okay, fine, bacha. I'll just give you my number. You just add me there. Countable, uncountable. Understood? अब बच्चा मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जो बिल्कुल ही अनकाउंटेबल होते हैं और उनके साथ हम लोग क्या गलतियां करते हैं, हम उनके साथ ए और एन लगा देते हैं, हम उनके साथ मैनी लगा देते हैं और जो कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। पेपर में भी ऐसे ही आएगा। जैसे कि आपको मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रही हूँ, एक वर्ड देखो बच्चा, एडवाइस। एडवाइस, ठीक है, एडवाइस एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल है। गिव मी एन एडवाइस, अगर आपको कोई ऐसे कहे या कहीं भी आप ये सेंटेंस देखते हो, गिव मी एन एडवाइस, ये और आई हैव गिवन हिम एन एडवाइस, एन एडवाइस नो, गलती क्या, एन नहीं आना। फाइन, एन नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ नोट ए, एन, मैनी, और पीछे एस भी नहीं लगेगा। ठीक है, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, आगे और पीछे एस नहीं आएगा अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, ए, एन, मैनी, बिफोर, यानी ये चीजें आगे नहीं आएंगी इनके अनकाउंटेबल के साथ, और पीछे इनके एस नहीं आएगा, ई एस नहीं आएगा। फाइन, जिससे भी आप इसका प्लूरल बनाते हैं मींस इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। फाइन, अंडरस्टूड एवरीवन? प्रॉपर्ली? एनी डाउट फ्रॉम बिगिनिंग टू अप टू हियर, एवरीथिंग? तो बच्चा नाउ यू विल बी जस्ट राइटिंग सम ऑफ द वर्ड्स विच आर एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल। ठीक है बच्चा, लिखो। यस, इंफॉर्मेशन, वर्ड इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, लगेज, हाँ जी लगेज, लगेज मीन्स सामान। ठीक है, फ्यूल, फ्यूल ईंधन। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन भी लिख लेना, इंफॉर्मेशन डन। हाँ जी, वैकेशन, वर्ड वैकेशन होता है ना हमारी, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, वैकेशन, वैकेशंस नहीं, वैकेशन। ओके, वैकेशन। मशीन, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा VACHEIUN, वैकेशन। मशीन्स, मशीन, हाँ जी वर्क, मशीन भी अनकाउंटेबल बच्चा। अब बताइए वर्क, वर्क जो वर्ड है ना वो क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? आप बोलते हो मेरे पास 4-5 काम हैं करने को, बोलते ही हैं हम लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते तो गलत बोलते हो। ठीक है, हमें बोलना चाहिए मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। इसके साथ मैनी नहीं लगेगा, इसके साथ मच लगेगा। आई हैव मच वर्क टू डू। अगर आप बोलेंगे आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, और ये सेंटेंस में पेपर में ऐसे ही आने वाला है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आपको लगेगा कोई भी गलती नहीं है, करेक्ट, नो करेक्ट। आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक है जी, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे। आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो ना, पहले लिखी होगी जब कभी नहीं आना होता था स्कूल, बहाना लगाते थे ना, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे, एन अर्जेंट वर्क। सही है ये सेंटेंस? बट टीचर किसी और तरीके से लिखवाते थे, याद है? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क आ जाएगा, एब्सोल्युटली ओके, बट आई हैव एन अर्जेंट वर्क, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई हैव अर्जेंट वर्क, एन, नो एन। अब आप कहोगे अर्जेंट बीच में आ गया तो फिर क्या हुआ? मनी कोई, सॉरी वर्क कोई बता रहा है भी वर्क कैसा है, अर्जेंट है तो वर्क के लिए ना, तो ये एन भी आया वर्क के साथ ही है। ठीक है जी, नो ए, नो एन, नो मैनी, नो एस पीछे।
आपके पास कितने ही काम क्यों ना हो करने को, आप कहोगे आई हैव मच वर्क टू डू। फाइन। हाँ जी, नेक्स्ट हेयर। हेयर बताइए, हेयर आपके काउंटेबल होते हैं कि अनकाउंटेबल? ऑब्वियस है, अनकाउंटेबल होते हैं भाई, एब्सोल्युटली अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं योर हेयर इज कर्ली, स्ट्रेट, स्मूथ। ठीक है, बट सपोज आपके सर में 2 सफेद बाल है, फिर क्या कहोगे? बस वो जो, तो अगर इंडिविजुअली लोगे ना अपने हेयर को, फिर वो काउंटेबल हो जाएंगे। सेंटेंस ऐसे ही आएगा, शी और ही हैज 2 वाइट hairs। ठीक है, वाइट hairs। ठीक है, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज abuse, evidence। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अनकाउंटेबल रहेंगे। क्लियर। बिजनेस, अल्फाबेट। अल्फाबेट में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, 26 अल्फाबेट्स बोलते हैं, नो अल्फाबेट्स। ठीक है, ओनली अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट्स पता है क्या हो जाती हैं? इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, संस्कृत की भी, अगर कोई और भाषा है तो उसकी भी अल्फ़ाबेट्स वो हो जाती हैं। अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश में जो 26 लेटर्स हैं ना, वो क्या हैं? अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। ठीक है जी। बच्चा एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ब्रेड। ये जो कॉमन भी है और एक ये इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। ब्रेड, ब्रेड बताइए, ब्रेड क्या है? काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? आप काउंट कर सकते हैं ना ब्रेड को? आपको पता है उनके स्लाइसेस बने हुए होते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड होता है। ठीक है जी, स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड को लोगे आप अनकाउंटेबल, ब्रेड के साथ ऐसे नहीं लगाना। ठीक है, 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड चलेगा, बट 2 ब्रेड्स, आई हैव बॉट टुडे 2 ब्रेड्स, नो ब्रेड्स, ओनली ब्रेड। चाहे 2 खरीदिए, कितनी मर्जी खरीदिए, वैसे तो 2 तो आता नहीं, मच ही आएगा। तो ठीक है, जो पाउंड्स में होते हैं ना, इनको हम इस तरह, जिस तरह जो मेजरमेंट करते हैं पाउंड्स में करते हैं इनका, ठीक है, वेट करके करते हैं, दैट इज विल बी अनकाउंटेबल। ठीक है बच्चों। सो one question, then today it's free, we will be continuing the next day. Right everyone, Rahul was feeling weakness. Rahul was feeling weakness. Rahul was feeling weakness, so he talked to the jury. Jury, you know ना, collection of हाँ जी, jury, about the situation. About the situation. हाँ जी बच्चा, in this sentence you need to find out, first of all you just underline the nouns, then you tell the types of the nouns. Do fast. Okay, you are saying Rahul. Rahul is proper. Okay, then weakness, abstract. Okay, then jury, collective. Fine. कोई और है? It's not name. It's not name. हाँ जी बोलो बच्चा, कोई और है? Any other? No? TION, MENT, याद नहीं है आपको? जिनके पीछे ये वर्ड्स आते हैं सारे के सारे नाउन ही तो होते हैं, और होते भी कॉमन नाउन है। ठीक है जी, ठीक है। TION, NESS, MENT, लिख लो जल्दी जल्दी। TION, MENT, MENT, मेंट नहीं होता, जजमेंट। TION, MENT, SES, SIS एंड MENT, बस हो गया 5। SES, SIS, ठीक है। इफ यू फाइंड these words like at the end of any word, these will be only noun and these will be common noun. Understood? So hopefully you all are understood well today. If you feel like I have to change something,
or something you are feeling that I have not explained properly, so just let me know now only so that I can prepare the next time. Well, none?